Good morning, students. Today I am going to continue your chapter, The Enemy, from your Vistas, page number 27, fourth paragraph. Now Sadao remembered the wound, and with his expert fingers he began to search for it. Blood flowed freshly at his touch. On the right side of the lower back, Sadao saw that a gun wound had been reopened. The flesh was blackened with powder. Sometime not many days ago, the man had been shot and had not been tended. It was bad chance that the rock had struck the wound. Tended means cared for or look after. Now the explanation. Sadao was reminded that the man was wounded as he had seen blood stains on the sand. As he was a doctor, he moved his trained fingers around his man's back to search for the wound. He felt blood oozing out of the wound in the lower part of his back. It was a gunshot. The man had been injured a few days ago. He had not got any medical help to treat the wound. As he had himself used some black colored powdery substance on it, the sharp rocks on the shore had pierced it and so it was bleeding. सदाओं ने यहाँ पर देख लिया था, उन्हें याद आ गया था कि वो वुंडेड व्यक्ति है, तो उन्होंने उस घाव को ढूंढा और वो डॉक्टर थे. उन्हें पता चल गया कि उस घाव को उन्होंने पहले कोई ट्रीटमेंट नहीं दिया है और वापस जो रॉक से वो टकराए होंगे तो वो वुंड वापस रीओपन हो गया और ज़्यादा वो ब्लीड करने लगा. नेक्स्ट स्टैंजा. Oh, how he is bleeding, Hannah whispered again in a Solomon voice. The mist screamed them now completely, and at this time of the day, no one came by. The fishermen had gone home, and even the chance beachcombers who have considered the day at an end. Solomon means serious and concerned here. Beachcomber, a vagrant who makes a living by searching beaches for articles of value and selling them. Now the explanation. Hannah was concerned that the man was injured and said in a low voice that he was bleeding. The mist had intensed now. The three of them would now be spotted by anyone. Moreover, the fishermen and the ragpickers did not visit the place at the right time of the day here. अब हैना ने भी देखा कि वो व्यक्ति जो है वो ब्लीड कर रहा था और वो जो मिस्ट था तो शायद वो वहाँ से थोड़ा सा हट चुका था. अब उनको लग रहा था कि कोई लोग वहाँ पर आ जाएंगे, उन्हें पता देख लेंगे शायद, मगर उन्होंने देखा कि अब तो शाम ढलने वाली है. फिशरमैन्स और रैक पिकर्स ये सब कोई भी इस समय यहाँ पर नहीं आएंगे. नेक्स्ट पैराग्राफ. व्हाट शैल वी डू विद द मैन, सदाओ मटर्ड, बट हिज ट्रेन्ड हैंड सीम्ड ऑफ देयर ओन विल टू बी डूइंग व्हाट दे कुड to snatch the fearful bleeding. He packed the wound with the sea moose, strewed the beach. The man mourned with pain in his stupor that he did not awaken. Muttered means speak in a low voice. अब sea moose is a kind of a seaweed, यानी खरपतवार जो वहाँ समुद्र में उगते हैं. Stanch, stop means restrict a flow of blood now. तो यहाँ पे सदाओं ने शायद वो वुंड को एज ए डॉक्टर उन्होंने वहाँ पे जो खरपतवार थे या मड थी इससे उन्होंने उसे ढका. मूंड अ लो क्राई इन पेन, स्टूपर अ स्टेट ऑफ अनकॉन्शियसनेस. The best thing that he would do would be to put him back in the sea, Sadao said, answering himself. Now that the bleeding was stopped for the moment, he stooped up and dusted the sand from his hands. अब यहाँ पे क्या हुआ कि उन्हें लगा कि बेस्ट थिंग क्या है कि उन्हें वापस समुद्र में डाल दिया जाए. सदाओं ने अपने आप को आंसर दिया, मगर अब जब उनको लगा कि वहाँ ब्लीडिंग स्टॉप हो चुकी है, उन्होंने जो वहाँ पर वो मूव्स और सैंड लगाकर उनको ढक दिया था, उन्होंने अपने हाथ को झटके और वो खड़े हो गए. यस, अनडाउटेडली दैट वुड बी बेस्ट, हैना सेड स्टेडीली. अब हैना ने भी कहा कि हाँ यही सही रहेगा. बट शी कंटिन्यू टू स्टेट डाउन एट द मोशनलेस मैन. मगर ऐसे कहने के बावजूद भी हैना उसी व्यक्ति को वहाँ पर खड़ी खड़ी देख रही थी. इफ वी sheltered a white man in our house, we should be arrested, and if we turned him over as a prisoner, he would certainly die, Sadao said. अब सदाओं का आंसर यहाँ पे क्या था कि अगर उसे हमने अपने घर पे आश्रय दिया तो वो हम भी अरेस्ट हो जाएंगे क्योंकि वो वाइट मैन थे, ये जैपनीज थे, और अगर उसे प्रिजनर के रूप में हैंड ओवर हो जाएंगे तो वो
एट लास्ट फिर भी वो वहाँ पर मार दिया जाएगा। सदाव ने कहा द काइंडेस्ट थिंग वुड बी टू पुट हिम बैक इनटू द सी, हैना सेड। हैना ने कहा कि अब सबसे बढ़िया यही है कि उस व्यक्ति को हमें वापस समुद्र में डाल देना चाहिए। बट नेदर ऑफ देम मूव, मगर दोनों वहाँ से कोई भी हिले नहीं। दोनों ने कहा जरूर मगर दोनों वहाँ से हट नहीं रहे थे। दे वर स्टेयरिंग विथ क्यूरियस रिपल्शन अपॉन द इंटर फिगर, वो दोनों उसे बहुत ही स्ट्रॉन्ग डिसलाइक से उसे वैसे ही घूर कर देख रहे थे बिना हिले डुले। यहाँ पर अब नेक्स्ट पैराग्राफ, व्हाट इज ही, हैना विस्पर्ड, देयर इज समथिंग अबाउट हिम दैट लुक्स अमेरिकन, सदाव सेड। अब सदाव ने अब हैना ने कहा कि व्हाट इज ही, वो कौन है, तो हाँ सदाव ने रिप्लाई दिया हिम दैट लुक्स लाइक अमेरिकन, सेड ही टुक अप द battered cap, yes, there almost gone was the faint lettering, a sailor, he said, from an American warship. He spelled it out, US Navy. The man was a prisoner of war. अब उन दोनों ने बिल्कुल क्लियर कर दिया कि वो कौन थे। सदाव ने जाकर वो कैप जो थी टोन वो फटी हुई थी उसे हटाकर देखा, और वहाँ पे जो वर्ड्स थे शायद वो बहुत ही फेंट हो चुके थे, क्लियर नहीं थे, फिर भी उन्होंने देखा उस पर लिखा हुआ था US Navy. The man was a prisoner of war. He has escaped, Henna cried softly, and that is why he is wounded. Henna कह रही है कि वो वहाँ से भागा हुआ है, वो कैदी था शायद ये जापानीज के अंडर, तो भागा हुआ है इसलिए वो wounded है। In the back, सदाव agreed, सदाव भी उस बात पर सहमत हुए। They hesitated looking at each other. Then Henna said with resolution, come, are we able to put him back into the sea? अब क्या हुआ, explanation, they were not able to gather the courage to throw him back into the sea. उनके पास वो हिम्मत नहीं थी कि उसे वापस समुद्र में डाल दिया जाए। Henna called upon Sadav with firmness. She asked him if he was ready to put him into the sea. फिर एक दृढ़ता से पूछा क्या वो रेडी हैं। सदाव विथ फर्मनेस की हमें उसे समुद्र में डाल देना चाहिए। इफ़ आई एम एबल आर यू, सदाव आस्क्ड। सदाव ने कहा कि उसने प्रश्न किया हैना ने पहले, तो सदाव ने कहा कि हाँ, इफ़ आई एम आर यू, मैं तो तैयार अगर हो जाऊंगा, क्या तुम भी हो? नो, हैना सेड, बट इफ़ यू कांट डू इट अलोन, मगर हैना ने कहा कि तुम अब अकेले इस काम को नहीं कर सकते। सदाव टोल्ड हर दैट ही वॉज एबल टू डू सो एंड आस्क्ड दैट डिड हैना हैव द करेज ऑफ इट। Henna replied in the negative and added that if he could not do it by himself, then she had to help him. अब उन्हें उसे help करनी पड़ेगी। Sadav hesitated again. The strange thing is, he said, that if the man were whole, I would have turned him over to the police without difficulty. I care nothing for him. He is my enemy. All Americans are my enemy, and he is only a common fellow. You see how foolish his face is, but since he is wounded. अब यहाँ पर सदाव क्या कह रहे हैं, सदाव वॉज रेलुकेंट इन थ्रोइंग द मैन इनटू द सी। क्यों वो नहीं चाह रहे थे उसे समुद्र में वापस फेंकना? उन्होंने क्या रीज़न दिया? ही रीज़न दैट इफ द मैन वॉज वेल, अगर वो सही होते, ही वुड हैंड हिम ओवर टू द पुलिस विदाउट एनी हेजिटेशन, बिना हिचकिचाहट के वो इजीली वो पुलिस को हैंड ओवर कर देते। और उन्होंने और क्या ऐड किया, ही वॉज नॉट कंसर्न अबाउट द मैन एंड कंसिडर्ड हिम टू बी एन एनिमी एज ही वॉज एन अमेरिकन। उन्होंने कहा कि मैं उसके लिए कोई कंसर्न नहीं रखता अगर वो व्यक्ति पूरा सही होता तो, क्योंकि वो एक अमेरिकन है, वो हमारे लिए दुश्मन है। ही कमेंटेड दैट द इंजर्ड मैन was a common man as his face looked as if he was a foolish person. मगर वो इंजर्ड था, घायल था, और उसका चेहरा जो है उसे उनको एक कॉमन मैन जैसे ही लग रहा था, क्योंकि वो डॉक्टर की नज़र से अब वो देख रहे थे। He wanted to say that he was not bothered about the injured man, but his only concern was that he was wounded. एक ही कंसर्न था कि वो घायल था। You also cannot throw him back to the sea, Henna said. Then there is only one thing to do. We must carry him into the house. अब हैना ने क्या रिप्लाई दिया? हैना ने कहा कि अब हम if he couldn't throw him into the sea, अगर उसे नहीं फेंक सकते समुद्र में, अब सेकेंड ऑप्शन यही बचा है कि उसे हमें घर ले जाना चाहिए। बट द सर्वेंट सदाव इंक्वायर्ड। अब सदाव ने क्या बोला? सदाव ने कहा कि हम ले तो जाएंगे मगर घर पे सर्वेंट्स हैं। They would object as they would shelter and that as we they shelter the enemy. अगर हमने दुश्मनों को संरक्षण आश्रय दिया तो वो ऑब्जेक्ट करेंगे। We must simply, अब यहाँ पे हैना क्या कहती है? We must simply tell them that we intended to give him to the police, as indeed he must, Sadav. We must think of the children of our possession. It would endanger all of us if we do not give this man over as a prisoner of war. Certainly, Sadav agreed. I would not think of doing anything else. Henna ने क्या कहा? Henna said that they would tell them that they intended to hand over them to the police once he recovered. जब वो recover हो जाएगा तो उसे वो पुलिस को दे देंगे. She told him that they must do that. और उसने कंफर्म नहीं कहा कि हमें ये करना ही है। क्यों?
उसने और क्यों जोर दिया, क्योंकि दे मस्ट कंसिडर द चिल्ड्रंस फ्यूचर, उनके बच्चों का भविष्य उन्हें देखना है और सदाओं का जो पोजीशन है, रेपुटेशन, उसे भी उन्हें ध्यान में रखना है। इफ़ वी डिड नॉट हैंड ओवर, अगर उन्होंने उसको हैंड ओवर नहीं किया एज अ प्रिजनर ऑफ वॉर टू द पुलिस, दे वुड बी इन डेंजर, वो खतरे में आ जाएंगे। सदाओ रिप्लाइड दैट सर्टेनली ही वुड डू सो एंड ही डिड नॉट थिंक ऑफ डूइंग एनीथिंग एल्स, उन्होंने कहा कि हाँ मैं यही करूँगा और इसके अलावा मैंने कुछ भी नहीं सोचा है करने के लिए। अब हम आगे नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।